Okay. It's lovely to be amongst the artist family over here, a room full of musicians, singers, composers, and lyricists. This was a dream which we began quite some time back, and today, the fact that we are going to announce Gungunalu and what Gungunalu is truly a proud moment for all of us. And thank you, Shankar. That was a wonderful introduction of what the dream was. Now we have so many artists, and more artists are going to come, which means what? There's going to be more content, more interaction with fans, much more than you can consume in a day. So what do you need? You need a fantastic digital platform that connects instantly, makes all the features, it's very slick. We have fantastic UI designers as well as back-end and front-end engineers working. And we'll just show you a little bit about what they have done so far. Take a look. To be honest, I'm rather overwhelmed by seeing so much of talent under one roof. Wonderful, and thank you very much, all of you who have come here. Time keeps flowing. Days become weeks, weeks become months, months become years, years become decades. But there are certain days in the world which are more important than the whole decade. Now there are few examples. Like it was 8th November 1902, when for the first time in this country a song was recorded. Sung by a 14-year-old girl. Her name was Sushi Mukhi in Calcutta. Such a privilege and very special moment to be here with all these amazing artists and creative people. I would like to share with you in very short the thoughts that are running through my mind. Although I am trained with a very senior guru and come from a classical background, and all my life I have rendered classical music, one part of me has always loved every other form of music that comes my way, be it folk, be it film, be it Brazilian music, or be it any other music, any country I go to. I like to collect that music and listen to that music. And sometimes when I listen to these songs, particularly folk songs, particularly when any of these artists sing amazing songs. Doing creative music has always been my, I would say, life. Singing all kinds of genres of music, be it film, be it ghazals, be it bhajans, like a lot of us here, be it fusion. But what sets Gungunalu apart is whatever we do for this company is for us. And I've always had creative, people gave me that, or I used to take creative freedom, I would say. Salim Gamle. Yeah, well, everybody said so much. I just want to say that this is it's a great opportunity for art to finally shine. Music and poetry is art form, and somewhere that, because we're so used to making a song to a brief or to a situation or to this moment where you're thinking, imagining what you're feeling, which is the true form of expression, is something that every artist should experience. We've always, in our country, film music has always been the main hero. And of course, the last few years have been amazing that independent music has risen. But still we tend to go into a sort of a web where we are making music or making a song
based on a certain situation or a, or something that we are creating a brief for ourselves. There's, like Ahsan said, that, I can just play blues and Javed Saab have spoken word on it. History of popular music. She sang in 10 languages, in different languages, even French and English. ये एक अजीब औरत थी. उस वक्त क्या था, ये राजा महाराजा नवाब लोग होते थे जिनके यहाँ जाके आपको गाना होता था. इनकी ईगो ऐसी थी कि सिंगर को खड़े होके गाना होता था. Even the musician with the tabla were not allowed to sit down. So he would stand and play tabla, stand and play sarangi or sitar, whatever. They were not allowed to sit. Gauhar Jan was the first singer who said, I'll come to your darbar, my musicians will sit and I will sit. यहाँ पर है इस प्लेटफॉर्म में सभी के अपने अपने they lead a very busy life, they're successful, they're popular, वो सब तो है, लेकिन हर एक आर्टिस्ट में, I can speak on behalf of all the artists over here, still there are certain creative dreams which are there in every artist over here कि यार, you know what, I want to do this, I want to try doing this, I want to collaborate with this person, I probably want to do a Carnatic music album, or do a collaboration with somebody over here. I want, as you were speaking, maybe a beautiful poetry with alap and just a grand piano, which is played by Laya Mandal, something like that. ये हर एक के दिल में बहुत सारे लोग, there are dreams which are creative dreams, and this is the platform that is going to fulfill those dreams. बस बीच में थोड़ी सी हम हताश भी हो रहे थे कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये जो डेफिनेटली जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी है, इनके लिए इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता. और बहुत सालों का ये सपना है और बड़ी कोशिशों के बाद एक प्लेटफॉर्म ये बना गुनगुना लो. और जितने भी म्यूजिक से जुड़े लोग हैं, वो चाहे यहाँ से हों, यहाँ से बाहर से हों, फोक गाने वाले हों, क्लासिकल गाने वाले हों, हर आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता. और क्रिएटर्स को जो फ्रीडम यहाँ दिया जा रहा है, आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हैं. ये शिकायत बरसों से लोगों की रही कि यार हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते. सिचुएशन होती है, फिल्म होती है, डायरेक्टर होता है और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो उसके बीच में हमको काम करना रहता था. ये जगह है जहां आपको प्रूफ करना है कि आप में क्या टैलेंट है और उसका बेनिफिट आपको मिलना है, उससे पॉपुलैरिटी आपको मिलनी है. तो नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है. ऐसा दुनिया में कुछ, आई थिंक देयर इज नो अनदर प्लेटफॉर्म, इस तरह का कोई उदाहरण ही नहीं, कोई एग्जांपल ही नहीं. क्योंकि जैसे आप लोग ने सुना होगा, म्यूजिक कंपनी से आता है, आर्टिस्ट गाता है, फिल्मों में जाता है. यहाँ सिर्फ आर्टिस्ट मिलके एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो आर्टिस्ट रिलीज करेंगे म्यूजिक. So I am actually honored to be a part of this wonderful platform, Gungunalo, as one of the artist investors and one of the stakeholders in the company, where we all as a fraternity, all the legends of the music industry, it's an honor to be collaborating with them and to get associated with them and create some music collaboratively and with complete creative freedom. एक क्रॉस कोलैबोरेशंस जो होंगे आर्टिस्ट्स के एक साथ में और नए आर्टिस्टों के साथ, और साथ में कॉन्सर्ट्स भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे. तो इट्स अ कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस कमिंग टुगेदर टू प्रमोट व्हाट वी कॉल एज रियल आर्ट. एंड दिस इज व्हाट has inspired me to come together along with all of them on Gungunalo. मैं अरुणा साई राम आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गुनगुनालो के शेयर होल्डर्स में मैं भी शामिल हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम बात है क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत तो गाती हूँ, दुनिया भर में प्रोग्राम्स देती हूँ और सब कुछ बहुत ही ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया ही है. लेकिन मन में एक विचार था कि मैं क्लासिकल के अलावा और भी फॉर्म्स में मैं शामिल हूँ. नहीं, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आप सबको लगता है कि आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास तो माइक है, मंच है, उनको किस बात की ज़रूरत है, उनको तो एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। पर कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको लगता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, किसी और की बात कह रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने मन की बात कह सकते हैं। देखिए, जैसे अभी मैं किसी से यही कह रहा था कि हम लोग ने करियर बहुत साल पहले शुरू किया और करीब करीब 250 पौने 300 फिल्में करने के बाद एक चीज़ से हम लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते थे कि मोर ऑफन देन नॉट हम जो चाहते थे उस तरह की धुनें, उस तरह के गाने हम नहीं दे पाते थे। ठीक है, हमारे गाने बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत से गाने जो हम पसंद करते हैं वो रिकॉर्ड हुए, लेकिन ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है फॉर द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स, बाय द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। गुनगुना लो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा प्लेटफॉर्म है कंपोजर्स, ऑथर, सिंगर्स सारे लोगों के लिए। जैसा आनंद जी ने कहा, हम लोग करीब 43 इयर्स से काम कर रहे हैं। कई हम लोग ने गाने ऐसे दिए जो हमारे पसंद के थे और हैं, मगर कई गाने ऐसे भी दिए जो हमें दूसरे के पसंद के। हाँ, हमें इतना नहीं पसंद था, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे हैं उनको पसंद नहीं। और यहाँ पर इंडस्ट्री में एक और चीज़ है कि यू हैव टू सेटिस्फाई अ लॉट ऑफ पीपल। वेल, टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। आज जो हम सब आर्टिस्टों का एक ड्रीम है, ड्रीम था, ड्रीम है, और हर आर्टिस्ट के दिल में, भले वो कितना ही पॉपुलर हो, कितना ही बिजी हो, कितना ही सक्सेसफुल हो, फेमस हो, फिर भी दिल में क्रिएटिव ड्रीम होता है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, यार मुझे ऐसे कोलैबोरेशन करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर जो क्रिएटिव ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये गुनगुना लो प्लेटफॉर्म बनाया। आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। हम सब भी कोशिश करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करने के लिए। बहुत लोग आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट ये आर्टिस्ट कौन से प्लेटफॉर्म्स पे म्यूजिक रिलीज करते हैं? ये यूट्यूब पे रिलीज करते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ये सारे जो जियो हो गया, जियो सावन हो गया। बट दिस सॉन्ग्स बिलोंग टू whom? नो, इट बिलोंग्स टू द आर्टिस्ट, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब हम गुनगुनालो पे रिलीज करेंगे, ये प्लेटफॉर्म इज आल्सो ओन्ड बाय द आर्टिस्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड record label, streaming platform, social media platform, solely owned by composers and artists. बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि आज अगर हम देखें तो there is a big void in the system. हमारी industry is owned, our music is owned by somebody else. गुनगुना लो हमारे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने फ्रीडम से हमारे थॉट्स, देयर आर सो मेनी आइडियाज विच हम लोग ने जैसे किसी के लिए गाने बना रहे हैं तो हमने बना के रखे हुए हैं। इट्स नॉट ओनली दैट, बट इट आर दोज आइडियाज जो हमारे पास पड़े हुए हैं, प्लस हमें ऐसी चीज़ें करने का मन होता है जो हम उस पर डिसीजन ले सकें। और इसमें हमें भी एक और चीज़ सीखनी है, हमें भी फ्रीडम की आदत नहीं है, तो फ्रीडम होते हुए कहाँ फुल स्टॉप डालना वो हमें भी नहीं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस वाइज कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इट स्टार्टेड विद अ वेरी क्लीन इंटेंशन, विद अ वेरी प्योर इंटेंशन। और जो भी चीज़ मेरे हिसाब से एक साफ दिल से, साफ मन से बनता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल जब नंबर्स बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हो चुकी हैं, तो हम किसी चीज़ की हिट या ना हिट पर सोचते हैं कि इसको कितने व्यूज़, कितने स्ट्रीम्स, उस पर सब निर्भर है, सबकी करियर्स निर्भर है कि आपकी पॉपुलैरिटी नंबर्स पर निर्भर है। तो यहाँ जब ये अपना ऐप है, मैं जानता हूँ कि यहाँ वही लोग इस ऐप को सब्सक्राइब करेंगे, वही लोग आएंगे जो कुछ अलग म्यूजिक, कुछ खास म्यूजिक, कुछ स्पेशल म्यूजिक सुनना चाहते हैं। वरना ये सारे जो आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं हमारे गाने आप तक पहुंच रहे हैं, नॉन फिल्म गाने भी आ रहे हैं, सबके अपने अपने चैनल्स हैं, लेकिन यहाँ हम सब कोशिश करेंगे कि
हमारी जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे मतलब म्यूजिकल चीज़, सुपरलेटिव चीज़ हो, वो हम गुनगुनानों में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन तो होगी। हम नहीं चाहेंगे कि 4 लोगों के सामने अरे यार ये शान ने कैसा गाना डाल दिया है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही मैं रखूं। देखिए, जो लोग सुनते हैं इसके बारे में कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं वो नहीं करना चाहता, बड़ा इम्पोर्टेंस लगेगा मेरे मुंह से। लेकिन ये कि ये दुनिया में ये पहली तरह की चीज़ है, ऐसा कहीं हुआ नहीं कि जहाँ म्यूजिशियन, सिंगर, लिरिसिस्ट मिलके एक कंपनी फॉर्म करें, उसमें शेयर होल्डर और अपने अपना संगीत टोटल फ्रीडम के साथ। ऐसा नहीं है कि हम चेक करेंगे, कोई हमारा उसमें कमेटी है जो देखेगी कि क्या गाना है क्या नहीं है। आपके आर्टिस्टिक फ्रीडम टोटल है, इसलिए कि जो लोग हैं वो बड़े ट्रस्टवर्दी नाम है, बड़े इज्जत कमाए हुए लोग हैं। वो अपने कम से कम 4 कॉम्पोजिशन, दादा जितनी चाहे डाले, वो हर साल करते रहेंगे। और इतने मेंबर्स हैं हमारे जो सब 4-4 करेंगे तो 100-150 से ऊपर गाने होंगे हर साल। होपफुली गेम चेंजर, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल होगा, वो हमारी कोशिश है। मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब ये जो कोशिश इतने दिनों से जो ख्याल में था वो फाइनली मटेरियलाइज हो रहा है। द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम हियर। और जो कि मेरे साथी कलाकार और मेरे सीनियर्स जिन्होंने सबने प्लेटफॉर्म पे उस वक्त बोला भी इंटरेक्शन के वक्त की जो कुछ ज़रूरी बातें वो ये है कि हम लोग जिस दायरे में रह के यूजुअली कमीशन वर्क करते हैं तो कई बार ऐसे होते हैं, बहुत से आइडियाज़ दिमाग में रह जाते हैं जो वहाँ पे आ नहीं पाते। लेकिन हमारा मन होता है कि कभी इस आइडिया को करें। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम वैसे जो अधूरे आइडियाज़ हैं जो हमारे बहुत टाइम से करने की इच्छा है, कर नहीं पाए, वो करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। दूसरी बात है, वी आर द ओनर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म आवरसेल्फ। या इंग्लिश। तो 4 साल से काम कर रहे हैं हम लोग आर्टिस्ट लेके आने, और these artists are wonderful who want to change the world of music, who want to bring younger artists into the fold, create music that will just blow the mind away for younger generations. The tech platform that I will be responsible for will take all of this and make it available for the entire world in different countries, in different geographies, ensuring that children से लेके बूढ़े लोग, everybody will enjoy the music that we can put on. Other than music, we have very intriguing new content that will be spoken word, podcasts, and so many other things. Shirley, you want to say? आई थिंक ये जो ऐप है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर इसीलिए होगा, लाइक व्हेन यू कंपेयर द रेवेन्यू ऑफ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट vis-a-vis एन इंडियन आर्टिस्ट, जो गेम चेंजर है इज बिकॉज वो अपने गाने का ओनरशिप नहीं होती उनके पास। वो गाना बेच देते हमारे लेबल को, कंपनी को, प्रोड्यूस लेबल। एग्जाम्पल बीटल्स का सॉन्ग, बीटल्स का सॉन्ग अभी भी उनका ही है, तो आप कितने भी वर्जन्स करो, कितने भी रीमिक्स करो, वो पैसे बीटल्स को ही जाएगा कॉपीराइट का। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो, जैसे आप बोल रहे थे कि सब जो ओनर्स भी हम लोग हैं, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, लिरिसिस्ट, और क्या है कि पॉसिबिलिटीज इतने हैं इसमें कि कोलैबोरेशंस अगर करते रहे 10 साल तक कोलैबोरेशन चलेंगे। सिर्फ जो मेंबर्स अभी है और भी मेंबर्स जब ज्वाइन होंगे तो फिर मतलब कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, ये चलते रहेगा, म्यूजिक बनते रहेगी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, जिधर मतलब कि ऐसे नहीं कि फिल्म की प्रेशर हो, कि सीन की प्रेशर हो या स्टार्स की प्रेशर हो। ये जो म्यूजिक फॉर म्यूजिक सेक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी इंडस्ट्री। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक एवेन्यूज हैं, लेकिन सबसे पहले तो इतनी क्रेडिबल एक जगह से आ रही है। जावेद साहब है, बैक बाय जावेद साहब, शंकर जी। तो ये पहली बार हो रहा है, एंड फॉर आर्टिस्ट लाइक अस, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा एक सपोर्ट मिले इंडस्ट्री में, एंड आई फील लाइक इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती।